Good morning, everyone. Good morning. So today we are going to start with another topic, okay, that is crop protection management. Before this, we have already completed crop variety improvement techniques, fine. And secondly, we have also done about crop production management, okay. In that we have studied about, in crop production management, we have studied about nutrients, fine, organic manures, as well as about fertilizers, irrigation sources, as well as different types of cropping patterns, right? That we have already covered. Today we are going to discuss about next thing, that is crop protection management. So as the name says, crop protection management, that means what? How we can protect the crops. Since we know that from the preparation of the bed, or you can say soil bed, okay, soil bed, preparation of the soil bed till the harvesting of the crops, and then afterwards storing of the crops, storage of the food grains, okay, that is very important. So each and every step we require a special type of protection. If you will think we will just protect the our crops only during the sowing period, right, not during the harvesting period, then what will happen? Our crops or the food grains or the agricultural produce which we are going to get will get lost, okay, or it will get spoiled, by various types of factors, some living factors as well as some non-living factors. Both these factors might affect the growth of your crops or the agricultural produce which we are getting from the crops, okay, or the plants. So that we need to protect. So that are included under crop protection management. So now we will see what are the different preventive measures as well as what are the factors which can cause the certain effects onto your crops through which your crops might get lost, okay. तो उसको हमको protect करना है, prevent करना है various type के diseases से, for example which are caused by bacteria, virus, fungus, right, or it may be due to some inappropriate temperature, high temperature, low, very high temperature, very low temperature, you can say moisture content if it is more, okay, then obviously your agricultural produce may get destroyed, may get deteriorated. So we need to protect our crops, okay, at each and every level, whether we are preparing the soil, or you can say whether we are sowing the seeds, or whether we are just giving the manures, fertilizers, okay, or whether we are harvesting the crops. Each and every step requires equal protection, okay, otherwise our crops might get destroyed, it will get affected. To protect it, we are seeing different factors how we can protect our crops, okay. तो firstly see weeds, आपके कौन से ऐसे चीज़ें होती है जो कि आपके crops को damage कर सकते हैं या destroy कर सकते हैं. तो we have, as we have discussed, we have biotic factors also, that is living factors, as well as we have abiotic factors also, that are non-living factors. So about weeds, if we say weeds are nothing but what? Unwanted plants, right? Weeds are nothing but your unwanted plants which can interfere, which might interfere with our main production crop or the plant, ठीक है. तो अगर unwanted plants का growth ज़्यादा हो जाता है as compared to your wanted plant, then obviously more amount of space, light, nutrients, water content, right, are taken up by the unwanted plants, और उनका cultivation हो जाएगा, उनका growth हो जाएगा rather than our main production crop. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. So we should remove the weeds, right, before actual production starts, or during the initial stages also. If you observe कि आपके main production plant या crops के साथ में if there are some unwanted crops, unwanted plants are growing, then or you can say farmers first step would be for the removal of this unwanted plants, that is the weeds. अब इसके लिए different methods होते हैं. We have mechanical methods also, by manually also we can remove this, okay, but it will consume more time. Nowadays we have different technologies, okay, जिसको हम use करके जो है weeds को क्या कर सकते हैं, destroy कर सकते हैं with the help of some weedicides also, but they are chemical based. So जितना ज़्यादा वो protection नहीं देगा, उससे ज़्यादा वो क्या कर देगा, it can cause harm, okay, to the soil also and to the main your production crops also. तो हमें ये ध्यान रखना है whatever method which we are using, ठीक है, it should not destroy our main crop. Rather, it should destroy the bacteria, virus, fungus, or the unwanted plants, that is weeds, from our cultivation area.
okay, from the cultivated land. Is that clear? Okay. So weeds, insects, pests, right, these are certain what, biotic agents, living organisms only, but they can interfere with the production crop, and they might disturb, they might destroy, they might kill certain what you can say, they might affect your main production crops or the plants. And some diseases which are also caused by bacteria, some virus, some fungus, right, so they might destroy your crops. तो उनसे आपको क्या करना है, आपके प्लांट्स को, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करके रखना है. तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है. वी कैन यूज सर्टेन केमिकल मेथड्स ऑल्सो, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स. सो दे आर डिस्ट्रॉइंग, दे माइट डिस्ट्रॉय योर क्रॉप्स ऑल्सो. जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेगा उससे कहीं ज़्यादा लेवल पे डिस्ट्रॉय कर देगा. इफ 1% अगर वो क्रॉप्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो 99% it is affecting the crops also. Okay, so that is why we need to switch towards the more towards the bio-based type of, you know, this thing as a controlling agent. Yes, for the control of what, this agents such as harmful pathogens or the bacteria, virus and fungus, है ना. उसको हम biological method use करके उसको kill करोगे तो ज़्यादा better है as compared to going for the chemical based method, because chemical methods have certain disadvantages. वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके crop को ठीक है थोड़ा बहुत protection देगा, but बहुत ज़्यादा amount में क्या कर सकता है, it can destroy the production of your main crops. Okay. So weeds, insects, pest, diseases may damage your field crops. Field crops, that is nothing but your main crops, है ना. उनका प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है, उसके ही प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने मैनेजमेंट देखा था ना. इन द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो आप कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हो सके उसको मैनेज कैसे कर पाओ, न्यूट्रिएंट का सप्लाई कैसे करोगे, वाटर सप्लाई कैसे दोगे, इफ़ देर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, राइट. प्रॉपर मेथड, क्रॉपिंग मेथड कौन सा यूज़ करोगे, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग एंड ऑल. ठीक है, तो उसका एम क्या था आपका पढ़ने का, टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप्स. और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कब सही रहेगा, जब उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा. तो थर्ड टॉपिक, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. आपने प्रोडक्शन तो करवा लिया बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, है ना, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन यू आर सीइंग, यू आर ऑब्जर्विंग, बट वॉट इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द बायोटिक एजेंट्स. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर क्रॉप्स. तो उसके लिए हमको ये वाले मेथड पे भी, ये वाले मेजर्स पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. ओके. सेकेंड, अबाउट वीड्स वी हैव डिस्कस्ड. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स that are cultivated, not cultivated exactly, they are actually grown, right, in the during the मेन क्रॉप प्रोडक्शन. जब मेन क्रॉप का आपका कल्टीवेशन ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे अननोइंगली क्या हो जा रहा है, किसका ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, वीड्स का, और यू कैन से अनवांटेड प्लांट्स का. एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सम वीड्स आर ज़ैंथियम, पार्थेनियम, साइपरनिकस, रोटेंडस, राइट, सेपेरिनस, रोटेंडस. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द वीड्स और यू कैन से अनवांटेड प्लांट्स. दे compete for what, food or the nutrient sources, space, light, वाटर, इन सब से इनका कंपटीशन होता है. मतलब जो मेन क्रॉप है आपका और जो वीड्स है, ये दोनों आपस में compete करते हैं. अब वीड्स ने ज़्यादा जगह ले लिया, ज़्यादा स्पेस ले लिया, ज़्यादा लाइट ले लिया, ज़्यादा फूड ले लिया, ज़्यादा वाटर ले लिया, मिनरल्स ले लिया. व्हाट विल हैपन, वीड्स की ही ग्रोथ होती चली जाएगी और आपका मेन प्रोडक्शन क्रॉप जिसको ज़्यादा हाई होना चाहिए था वो लो होता जाएगा. ठीक है, उसका प्रोडक्शन कम होते जाएगा. सो दैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन, है ना. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रिमूव द weeds by mechanical methods, by using manual methods, by chemical based methods, right, or by using the biological method. तो best method इसमें कौन सा रहेगा आपका, biological method, because it is not going to harm your environment. Okay, बाकी सारी चीज़ों से pollution हो सकता है, but if we are using some bio based methods, so obviously it is not going to cause any such harmful effects on our environment. Okay, next, so हमने weeds के बारे में देखा. Okay, नेक्स्ट अबाउट इंसेक्ट पेस्ट. अब ये इंसेक्ट्स और अदर सम पेस्ट्स विच कैन डिस्ट्रॉय द प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप्स, है ना, विच माइट किल, विच माइट हैव सर्टेन इफेक्ट्स ऑन द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, राइट. जो फ्रूट्स ना, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है या द क्रॉप्स है, तो उनके एक एक पार्ट को अगर डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मेन क्रॉप का प्रोडक्शन ही कम, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा. सो दिस इंसेक्ट पेस्ट अटैक्स दी insect pest attacks the plants in 3 different ways. वो रूट को अफेक्ट कर सकते हैं, स्टेम को कर सकते हैं, लीव्स को कर सकते हैं. सो दे कैन कट द रूट, स्टेम एज वेल एज लीव्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट और दी क्रॉप्स. सेकेंड उनका जो है अटैक कहाँ पर होगा, सेल सैप,
दे माइट टेक द सेल सैप. अभी ये सेल सैप क्या होता है, तो ऐसे फ्लूइड हो सकते हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल, है ना, सम फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल containing some sugars, amino acids, okay, sugars, amino acids and all, ये कुछ ऐसे substances होते हैं which are present in the sap of a cell. So these are taken up as a nutrient source for the insects. तो insect ही सारा उसका nutrients ले लेंगे तो what we will get, ओके, सो वो न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस्ट हो जाएगा, विच इज़ एक्टिंग एज अ फूड सोर्स फॉर द पेस्ट. So this pest can suck those cell sap, the sap which is present inside the cell. Okay. They bore, third is what? They bore into stem and fruits. कभी कभार हमने देखा है कि कुछ fruits होते हैं, some holes are present in that particular fruits. They are nothing but the holes or the pores, ठीक है, which are done by this particular insect pest. तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट दैट मच good to eat. Okay, so that is why we need to protect our crops from getting destroyed by this particular insect or certain pest. Okay, plant diseases, as we have discussed कि हमको plants को ही बचाना है या crops को बचाना है, तो obviously we need to protect it from getting disease. Okay, और disease किससे इसको cause हो सकता है, spread हो सकता है by means of bacteria, some viruses, some fungus, right? सो दे आर हार्मफुल पैथोजेंस जो कि आपके मेन क्रॉप प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे उसके रूट को, स्टेम को, लीव्स को, राइट. तो ये सबका डिस्ट्रक्शन हो ना जाए, दैट इज़ वाई वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्रॉप्स, फाइन, by using various methods. So see, plant diseases are caused by pathogens such as bacteria, viruses, fungi, which can spread through the various दिस थिंग्स, एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, इसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है बिकॉज दिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, दिस आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. ओके, सो इफ आवर प्लांट्स आर एक्सपोज्ड बाय दिस पर्टिकुलर हार्मफुल पैथोजेंस, आवर प्लांट्स आर गोइंग टू गेट disease. Okay, so to protect it from the diseases we can use the some methods. Okay, जैसे आपने बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए बैक्टीरिसाइड यूज कर दिया in order to kill the bacteria, ठीक है. देन फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए फंगीसाइड यूज कर दिया, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज कर दिया, फाइन. So these are the chemical agents or the chemicals which can destroy different types of insects, bacteria, fungus or other harmful pathogens. तो वो केमिकल बेस्ड मेथड के ऊपर डिपेंड होने के बजाय वी कैन गो फॉर दी बायो बेस्ड मेथड. जैसे केमिकल पेस्टिसाइड की जगह पे वी कैन यूज़ बायो पेस्टिसाइड, कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, दैट इज़ नॉट पैथोजन बट येस सम यूजफुल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ फंगस हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे सीड को कोट कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे प्लांट को थोड़ा रेजिस्टेंट बना सकते हैं. दिस यू विल बी स्टडिंग इन योर हायर क्लासेस कि हाउ वी कैन मेक अ पर्टिकुलर प्लांट टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट सर्टेन वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है. उसके पीछे एक पूरा जेनेटिक लेवल पे वी कैन डू दिस, वी कैन अचीव दिस. इसका छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, राइट. हमने जब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पढ़े थे ना, यस और नो, यस. तो एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट hybridization technique in which we have crossed two different varieties of crops. Do you remember? Yes, ma'am. Right? So उसके genetic level पे if we are changing their some genes which can protect the plants against various infections, तो वो चीज़ें we can control it on their genetic level. Okay? ठीक. Next is pesticide, as we have already discussed कि कुछ chemical based agents होते हैं such as herbicides which can kill small herbs, small plants, insecticide which can kill the insects, fungicides which can destroy the fungus, okay, fungi. So these are used on the crops for seed as well as soil treatment, है ना. अभी मैंने बोला कि हम soil या फिर जो seed है उसको treatment जो दे रहे हैं, it's better if we use biological method rather than using the chemical based method. But we are dependent much more on this chemicals, ठीक है. We are using these chemicals in order to destroy the various pathogens and all. But it's better if we go for using, instead of pesticide, chemical pesticide, we can use biopesticide. Alternative method होता है to use the biopesticide. Okay. So however, overuse of this pesticides, जैसा हमने बोला कि ये एक है method, yes we can use this method, but in a limited amount. Okay, if overdose में आप use कर रहे हो, in large amount if we are using this, then obviously it is going to have effect on plants also, animals also, as well as our environment, nature also, है ना. It can cause pollution,
ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकता है, सम अदर पोल्यूशन इट कैन कॉज, वाटर पोल्यूशन कॉज हो सकता है, तो वो चीज़ ना हो. सो दैट इज़ वाई वी कैन चूज दी बायोपेस्टिसाइड्स रादर देन गोइंग फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स. ओके. नेक्स्ट, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स. अभी वीड्स को किल करने के लिए वी हैव वीडीसाइड्स ऑल्सो. ठीक है, जो कुछ ऐसे पाउडर्स नहीं होते केमिकल बेस्ड विच वी आर स्प्रेइंग ऑन टू द प्लांट्स और द क्रॉप्स और द सॉइल सो एज टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल एजेंट्स. बट वो हार्मफुल एजेंट्स को तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करेगा, बट लार्ज अमाउंट में सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर सकता है, पोल्यूशन कॉज कर सकता है. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. एनिमल्स हु आर कमिंग एंड ईटिंग दोज प्लांट्स, so they might get killed or destroyed, okay, by the harmful effects of this chemicals. तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Is that clear? Then preventive methods like proper seed bed preparation, ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, in the last year also we have discussed, we have studied about soil bed preparation. Before that we are doing plowing, right? Proper plowing करते हैं कि नहीं करते हैं for turning and loosening the soil. Fine. तो उस वे में जो है हम बिफोर दिस पर्टिकुलर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ द सीड्स, इट इज़ नेसेसरी कि देर आर व्हाट यू कैन से वीड्स एंड ऑल शुड नॉट get grown inside that in that particular field. So that we should see कि during the plowing also, at the time of sowing the seeds also, unwanted जो आपके this plants अगर growth हो रहे हैं वहाँ पे, तो that should be removed by the mechanical methods or other preventive methods. Okay. इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये भी दोनों मेथड्स हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो वीड्स भी आपके कंट्रोल हो सकते हैं, बिकॉज अनवांटेड प्लांट्स का ग्रोथ एज सच होगा ही नहीं. ओके, इफ़ वी आर यूजिंग दी गुड टेक्निक्स, गुड मैनेजमेंट टेक्निक्स, है ना, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, तो आपका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा क्रॉप्स का. मैनेज तो कर ही रहे हो आप, प्रोडक्शन इंक्रीज करवा ही रहे हो और साथ में उसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हो. ओके, सो ऑल दिस 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज आर नेसेसरी: क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स अगेन पेस्ट, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज, है ना. ये अभी जस्ट हमने बोला था कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हमने रेजिस्टेंट वैरायटी को जो है प्रिपेयर करते हैं हम, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, नॉर्मल कॉटन का प्लांट कैन इजीली गेट डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट बॉलवॉर्म, बट इफ वी हैव मेड सम चेंजेस एट द जेनेटिक लेवल, तो इट कैन प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ टॉक्सिन, है ना. तो जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, दैट कैन एबल टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन. अब वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया, वी कैन आइसोलेट इट एंड वी कैन इंट्रोड्यूस इन अ वेक्टर एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस इनसाइड अ पर्टिकुलर कॉटन का प्लांट. तो वो जो ओरिजिनल कॉटन का प्लांट था जिसको इंसेक्ट आके डिस्ट्रॉय कर रहा था, अब वो कॉटन का प्लांट के अंदर एक ऐसा जीन चला गया है विच कैन एबल टू प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ टॉक्सिन, है ना. बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा. एंड वेन एवर दिस प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन, when the insect come and destroy that particular plant leaf, है ना. अभी कॉटन का है प्लांट है तो लीफ तो होगा. अब लीफ को डिस्ट्रॉय करने आएगा तो what will happen, it will ingest the toxin also, है ना. अब टॉक्सिन उसके अंदर चला जाएगा तो प्लांट तो सेफ हो जाएगा, सेफ रहेगा, बट आपका जो इंसेक्ट है जो डिस्ट्रॉय करने आया है आपके कॉटन के प्लांट को, वो इंसेक्ट खुद ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, एंड आपका क्रॉप क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. ओके, प्रोटेक्टेड रहेगा. सो दैट मेथड इज नोन एज व्हाट, जेनेटिक लेवल पे हाउ वी आर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और द ऑर्गेनिजम्स आर प्रिपेयर्ड, ओके, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट दोज प्लांट्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड. तो हमने उसको इंसेक्ट से बचा लिया, तो इंसेक्टिसाइड तो यूज़ नहीं किया ना वहाँ पे, फिर भी उसको इंसेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल गया. ठीक है, सारे इंसेक्ट्स के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, बट कुछ पर्टिकुलर टाइप का के अगेंस्ट मिलेगा जो ज़्यादा लेवल पे कॉटन के प्लांट को हार्म कर सकता है. ओके, सो प्लांट आपका क्या बन जाएगा, अभी कॉटन प्लांट से बीटी कॉटन बन जाएगा, विच वुड बी द एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी. इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको रेजिस्टेंट वैरायटी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल बीटी कॉटन, है ना. बीटी कॉटन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता सकते हो. बीटी कॉटन, बीटी मीन्स बैसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया है, उसका जीन हम कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. यू विल बी स्टडिंग दिस इन योर हायर क्लासेस. ओके, कि क्या होता है, कैसे ये मेथड होता है. इन शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बट इन डिटेल यू विल बी हैविंग दिस इन योर हायर क्लासेस. ओके, so this resistant varieties could be developed. Summer plowing can be done. Plowing, that is nothing but loosening, turning of the soil, okay, before the cultivation. Fine. Then to destroy the weeds as well as to destroy the pest, ताकि आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका क्रॉप्स जो है, प्लांट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा.
Okay, so these are some of the preventive measures for the control of weeds, for the control of insects, for the control of various types of diseases which are caused by bacteria, virus or the fungus. Okay, is that clear? Next is about storage of grains. अभी protection जो हम दे रहे थे, तो obvious सी बात है we need to store the agricultural produce also, है ना. अभी storage क्यों necessary है? Why there is need to store the food grains properly? Obviously टू सेव इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, है ना. अगर आपने जो हार्वेस्टिंग कर लिया, सॉइल का बेड का प्रिपरेशन हो गया, सोइंग ऑफ द सीड्स हो गया, यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर और द मैनुअर्स हो गया, ठीक है, सारे मेथड्स आपने करा, ठीक है, प्रोटेक्शन मेजर्स आप यूज कर रहे हो, बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अगर आपने केयर नहीं लिया तो व्हाट विल हैपन, आपका जो प्रोडक्शन है वो वहीं पर जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो फूड ग्रेन्स आपको मिल रहा है दैट विल बी लेस इन क्वांटिटी. ओके, और हमें जो पॉपुलेशन का नीड को सेटिस्फाई करना है तो वी require high production of the crops, right, of the food grains in order to satisfy the needs of the growing population. तो आपने जब हार्वेस्ट करके आपके पास जो प्रोड्यूस मिल गया उसको आप स्टोर तो करोगे अच्छी तरह, ठीक है. एट होम्स ऑल्सो वी आर सीइंग कि एक स्टोरेज जो कंटेनर्स होते हैं उसमें फिल करके हम रखते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल वीट का आप देखते हो, गेहूँ जो है वीट, ठीक है, उसकी प्रॉपर वॉशिंग होती है, देन ड्राइंग होता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको फ्लोरिंग एंड मिलिंग बाद में करवाया जाता है ना, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर मेकिंग द चपातीज रोटीज एंड ऑल, राइट. बट पहला तो उसका क्या काम है कि आप जो स्टोर करके रख रहे हो प्रॉपर प्लेस में रख रहे हो कि नहीं, प्रॉपर वॉशिंग कर रहे हो कि नहीं. सो दैट ऑल आर द जनरल थिंग्स विच वी आर डूइंग एट आवर होम्स ऑल्सो, सो विच रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द स्टोरेज. ओके, एक गोडाउन भी जो रहता है तो उसके अंदर भी जो है वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया अगर हाई, वो भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है. मॉइस्चर कंटेंट, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट ज़्यादा है उस पर्टिकुलर गोडाउन में या फिर द रूम इन विच यू आर कीपिंग योर फूड ग्रेन्स, तो वहाँ पे भी उनका क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो फैक्टर्स कॉजिंग स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर अबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है आपका बायोटिक फैक्टर्स विच इंक्लूड्स व्हाट, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स में माइस, रैट्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है. देन आपका फंगस, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सब ऐसे पैथोजेंस रहेंगे विच कैन एबल टू डिस्ट्रॉय योर क्रॉप्स. तो अगर हमने जब हार्वेस्टिंग कर लिया, हमने पहले देखा था फंगस, बैक्टीरिया, इनसे हम उसको बचा के रख रहे थे, बट वो कहाँ पे, फील्ड में. अब कहाँ पे आ रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर गोडाउन में या रूम में जिसमें हम स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है. तो वहाँ पर भी प्रोटेक्शन इज मस्ट. सो दैट इज द टॉपिक स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, है ना, कि आप कैसे ग्रेन्स को स्टोर करके रख रहे हो in order to prevent it from getting spoiled. Spoilage मतलब क्या होता है, खराब हो जा रहा है वो, ठीक है, due to what, moisture content, temperature variations और some harmful pathogens. Okay, अबायोटिक में आ जाएगा आपका inappropriate moisture content, temperature, ठीक है, in the place where you are storing your food grains. Okay, grains. दे कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी. अब उससे इफेक्ट क्या होगा, जो आपका फूड ग्रेन्स जो है जिसको आप स्टोर करके रख रहे हो, अगर प्रॉपर तरीके से आपने उसको मैनेज नहीं किया, स्टोर नहीं किया, राइट, वो स्पॉइल्ड हो गया है बाय द मॉइस्चर कंटेंट या फिर कुछ पैथोजेंस ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है. सो देयर विल बी डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, लॉस इन द वेट, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट वेट हो जाएगा, ठीक है, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, जर्मिनेशन जो हम करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल पल्सेस और सम अदर दिस सोर्सेस, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली इट विल शो दी पुअर जर्मिनेबिलिटी, जर्मिनेशन प्रॉपर्टी ही सही नहीं रहेगा तो न्यूट्रिएंट जो है उससे जो हमको मिलने वाला है दैट विल ऑल्सो बिकम that would be deficient in that particular nutrient. Okay, तो उसका वो प्रॉपर्टी खत्म होगा. डिसकलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस, दैट इज क्या हो सकता है, कलर फेड हो सकता है, राइट, जो उसका एक्चुअल कलर है दैट माइट गेट डिस्ट्रॉयड. ओके, इफ वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स. यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स है विच वी नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज अबाउट स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, है ना, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, वॉशिंग ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज मस्ट. Second, drying of the agricultural produce is must in the sunlight and afterwards in the shade conditions. ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स है जो आपके घर में भी हम घरों में भी हम आपने देखा रहेगा, ठीक है. आवर मदर्स आर फॉलोइंग द सेम टेक्निक्स फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर द स्टोरिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स. उसकी वॉशिंग होगी, उसकी ड्राइंग होगी, देन प्रॉपर स्टोरेज होगा. ओके, स्टोर करेंगे. वन टेक्निक इज फ्यूमिगेशन, दैट इज न्यू फॉर यू, है ना. फ्यूमिगेट करना मतलब क्या होता है, इन दिस वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, ठीक है, तो उसके फ्यूम्स जो है आर रिलीज्ड इन अ पर्टिकुलर गोडाउन और द स्टोरेज प्लेस वेयर वी नीड टू स्टोर दी फूड ग्रेन्स. तो फूड ग्रेन स्टोर करने से पहले ये चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फूड ग्रेन्स ही पूरा केमिकल
का हो जाएगा. ओके, सो बिफोर स्टोरिंग दैट वी नीड टू फ्यूमिगेट द रूम जिसमें भी हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करके रखना है. तो फ्यूमिगेशन में वी आर यूजिंग सम केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स, सो दैट इज इन दैट पर्टिकुलर रूम. ये फ्यूमिगेशन जब करवाते हैं तो फॉर 24 आवर्स और सो उस रूम को ऐसे ही आप लीव कर देते हो, एंड द नेक्स्ट डे कंप्लीट वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होती है उस पर्टिकुलर रूम की, एंड वी आर इंश्योरिंग कि नाउ दैट पर्टिकुलर रूम और द गोडाउन इज फ्री ऑफ सर्टेन कंटामिनेंट्स या जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और या कोई भी ऐसे कुछ हार्मफुल एजेंट्स, पैथोजेंस आर नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रूम. तो वो इंश्योर हो जाते हैं. आफ्टर क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग एंड ऑल ओनली वी आर एबल टू स्टोर दी food grains, है ना, we can store the food grains. Fine. So with this we have completed the storage of grains also. ठीक है, rest of the topics we will see in the next lecture. Okay, thank you.